स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सीताराम चरित अति पावन सरस मधुर अति मन भावन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मन संकट भारी। जय श्री सीताराम हनुमान की। हरे कृष्ण। How long class? Huh? 8 o'clock. So today we are assembled to discuss about the life of Lord Sri Ramchandra. What we can learn from his life. So we welcome all of you. Tomorrow is
Sri Ram Navami Mahamahotsav, the birth date of Lord Sri Ramchandra. Hare Krishna. On this auspicious occasion, there is a tradition that we celebrate by remembering the personality, why his greatness, and what was the purpose of his coming to this world, why the Lord came in this world, what did what what did he want to achieve, why the Lord comes in this world. Usually the Lord resides in the spiritual world. Sometimes he visits this world. His home is different. As Srimad Bhagavat mentions that Lord Ramchandra was there in this world for 11,000 years, and sometime he comes for and stays for 13,000 years. So in different kalpa, Lord appears and stays for different duration. One kalpa. So each millennium, kalpa means millennium, Lord Ramchandra comes. Yada idahi dharmasya glani bhavati bharata. So I will read one sloka from Srimad Bhagavatam. Then we try to see one of his personal aspect of his personality. You know the detailed explanation of the life of Lord Sri Ramchandra is given in the very famous scripture Sri Ramayana, written by Sage Valmiki. Must be knowing, all of you know. You must have heard about Ramayana, Valmiki Ramayana. There are 18,000, 1 lakh verses in Ramayana. So we cannot read 1 lakh verse today. It's a huge literature. So the Ramayana was written by Valmiki, and how it begins, how it came into existence, why did he write Ramayana. So it is mentioned that once his guru, Valmiki, says Valmiki's guru was Narad Muni. Because all of you know that Valmiki was a dacoit before he met Narada. And his profession was killing and looting and murdering people. And he became sage, So much transformation. This is the power of association. If you associate with sadhus like like Narad Muni, he is such a powerful sage. So later on, when he became sage, he was once Narad visited and he asked a question that is there anyone in this world who is perfect, whose personality has no, whose personality, जिनके चरित्र में कोई दोष नहीं है.
जिसके चरित्र में कोई दोष नहीं, देयर इज नो फॉल्ट इन हिज कैरेक्टर। इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड? दिस वाज द क्वेश्चन। द मूल प्रश्न है रामायण का, जहां से रामायण शुरू हुआ है। और then Narada started explaining that yes, there is one person, only one person in this world whose personality has no fault. In his character, you will not find any fault, faultless character. Of course, nowadays people find fault in him also. जिसके लाइफ को लिखा ही गया था इस बेसिस पे कि उसके लाइफ में कोई फॉल्ट नहीं है, और उसी को फाउंडेशन बना के उसका कैरेक्टर लिखा गया। बट नाउअडेज पीपल फाइंड फॉल्ट इन दैट पर्सनालिटी, दैट वाज लॉर्ड श्री रामचंद्र। तो फिर नारद जी ने बताया उनको कि दशरथ नंदन श्री राम, अयोध्या नरेश, अयोध्या के राजा हैं श्री रामचंद्र, उनकी पर्सनालिटी में कोई दोष नहीं है। एंड देन ही एक्सप्लेन रामायण, नारद एक्सप्लेन टू वाल्मीकि एक चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर रामायण का यही है, संपूर्ण रामायण फर्स्ट चैप्टर में है, जो नारद जी बता रहे हैं वाल्मीकि को। बट देन ही टोल्ड दैट एक चैप्टर से काम नहीं चलेगा, बिकॉज पीपल वांट इन डिटेल टू नो, है ना, हिज पर्सनालिटी। तो देन ही रोट, देन वाल्मीकि एलेबोरेटेड फर्दर। तो वाल्मीकि जी को रामायण जो है वो कैसे प्रकट हुआ, हाउ ही रोट, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भगवान राम की लीला कर देखा नहीं था। भगवान जब लीला कर रहे थे तो वहाँ वाल्मीकि जी तो थे नहीं, तो उनको कैसे पता चला? तो इसका हिस्ट्री बताया गया है कि वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी चाहते थे कि रामायण ग्रंथ प्रकट हो, तो नारद जी ने उनको एक चैप्टर बताया था, लेकिन ब्रह्मा जी चाहते थे कि रामायण को प्रकट किया जाए। क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में लोग जो हैं वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे। पूरा डिटेल में वर्णन है, और पाप बहुत बढ़ेगा, और उस पाप को नाश करने के लिए रामायण ग्रंथ प्रकट हुआ। तो वाल्मीकि जी को वरदान दिए, वाल्मीकि जी को कहा कि तुम रामायण लिखो, ब्रह्मा जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, आई डोंट नो रामायण, मैंने राम का चरित्र देखा नहीं है डिटेल में, तो मैं कैसे लिखूंगा? ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आपके सामने साफ स्पष्ट दिखेगा। तो जैसे हाथ के ऊपर आंवले का ऐसे रख दिया तो सामने दिख रहे ऐसे, तो उनके सामने रामायण, भगवान राम की सारी लीलाएं चल रही थी ऐसे, एंड ही वाज वाचिंग एंड ही वाज राइटिंग लाइक दैट। दैट्स व्हाट इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। और केवल एक्टिविटीज नहीं चल दिख रहा था उनको, क्या क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या थॉट चल रहा था। जिस कोई व्यक्ति एक्शन लेता है तो उसके पीछे क्या होता है, एक फीलिंग होती है, एक इंटेंशन होता है, एक थॉट होता है, जिसके बेसिस पे एक्शन होता है। एक्शन तो एक्सटर्नल है, मेन तो इंटरनल थॉट प्रोसेस क्या है वो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें प्रकट करना है ना। उसी से तो लेसन लेंगे लोग। बाहरी आचरण तो एक है, लेकिन उस आचरण के पीछे जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको मैनिफेस्ट करना है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न। तो वो भी उनको मैनिफेस्ट हो रहा था।
And then he was writing everything he wrote in Ramayana Granth. And that Ramayana is still available even after. You can see Treta Yuga was in which, how many years back? Dwapar Yuga is 8,64,000 years. And then before Dwapar, it was Treta. So it may be minimum, you can imagine around 10 to 12 lakh years back, it was written Ramayana, as per Ramayana. When Ramayana was written, is written in Ramayana itself. Lord Rama appeared in Treta Yuga. So minimum, we can say lakhs of years back, but still it is available to us. That is the secret, a great, great lesson to all of us. कैसे उपलब्ध है आज भी? उस रामायण में भगवान के बहुत सारे गुणों का वर्णन है। तो रामायण पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम सीखें उससे। बट उस पर्पज से ये रामायण लिखा गया था कि हम उसको पढ़ के उससे हम इंस्पायर्ड फील हों एंड वी अपलिफ्ट आवरसेल्फ, आवर कॉन्शियसनेस, not only our behavior, but behind behavior there is consciousness, there is feeling, there are attitudes, there are values. So values are the most important thing. So we learn those values and we live with those values, and then we can bring peace and prosperity and happiness in our own life as well as in the world. When we learn, we imbibe those characters in our personality. तो बहुत सारे क्वालिटीज उसमें हैं, तो आई विल रीड वन श्लोका। एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितः शुचि स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयन् स्वयमाचरत्। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया, क्रोध कभी नहीं करते। उन्होंने हर एक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सद आचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य, श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय जो क्षत्रिय राजा थे वो कई पत्नी से विवाह कर सकते थे। जैसे इनके पिताजी थे महाराज दशरथ, तो उनकी 3 प्रमुख रानियां थी। उसके अतिरिक्त उनकी और भी रानियां थी। लेकिन भगवान रामचंद्र ने क्या किया? आदर्श प्रस्तुत किया, एक पत्नी व्रत धारण करके। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नियां थीं। किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था, तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से
युद्ध किया और अंत में रावण को मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा की। इससे उन्होंने लोगों को शिक्षा दिया। ये लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं। जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इस सिद्धांत के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो राजा थे और उनके पास ऐश्वर्य था, सामर्थ्य था, चाहते तो बहुत सारे विवाह कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने आचरण से शिक्षा दिया। और ऐसा जब वन में दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी थे तो वहां पर उनको एक प्रपोजल भी आया था। किससे? शूर्पणखा से। शूर्पणखा जो थी राक्षसी थी, लेकिन वो बहुत सुंदर खूबसूरत, उसके पास शक्ति थी, खूबसूरत रूप धारण करके आई। और उसने बड़े ही मीठे मीठे शब्दों में भगवान श्री राम जी को लुभाना शुरू किया। तो श्री राम जी ने बोला कि मेरा तो विवाह हो गया है, मेरी तो पत्नी है, तो मैं तो आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये तो अलाउड नहीं है। मैंने तो व्रत धारण किया है एक पत्नी का। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। तो बोला कि तो एक पत्नी है, सीता है, तो वो बोले कि सीता है तो क्या दिक्कत है, हम सीता को मार देते हैं दोनों मिलके, ये तो हमारा 1 मिनट का काम, सीता का मर्डर कर देती हूँ मैं और फिर विवाह कर लेंगे, जो आजकल हो रहा है। हो रहा है ना। शूर्पणखा का प्रपोजल था। तो ये मानसिकता आज की नहीं है, ये रामायण काल में भी थी। बोली कि हम दोनों के रास्ते का कांटा कौन है? सीता है, तो उसको हम हटा देते हैं रास्ते से। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुमको जो चाहिए वो व्यवस्था हो जाएगा। तो लक्ष्मण है, देखो वो पत्नी से दूर है, उधर जाओ। तो उसको तो विवाह से मतलब नहीं था, उसको तो काम वासना तृप्त करना था। बोली अच्छा आइडिया है, तो लक्ष्मण के पास गई। तो लक्ष्मण ने बोला कि नहीं नहीं, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप उधर ही जाओ। तो उधर फिर से वापस राम के पास गई। तो राम ने फिर कहा कि नहीं, मेरी पत्नी सीता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो फिर उसने अटैक कर दिया सीता पे, है ना। सीता पे अटैक किया तो तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी, तलवार से उसका नाक काट दिया ऐसे। तो फिर रोने लगी, रोती कर्करूप हो गई बिल्कुल।
तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति चाहता है क्या, शूर्पणखा देखो, शूर्पणखा चाहती है कि राम जैसा पति मिले, और रावण चाहता है कि सीता जैसी पत्नी। तो शूर्पणखा को अगर राम जैसा पति चाहिए तो उसको भी सीता बनना पड़ेगा ना, अपना भी तो कैरेक्टर देखना पड़ेगा, नहीं नहीं। उसी तरह से रावण को सीता जैसी पत्नी चाहिए है, तो राम जैसा तो बनो, है कि नहीं। लेकिन विडंबना क्या है, विडंबना यही है कि रावण को सीता चाहिए, जो संभव नहीं है, है? इसलिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज कल लोग बात करते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे इतना चर्चा चलता है, आई एम इनटू रिलेशनशिप, आई वांट टू बिल्ड मेक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का वर्ड का मजाक बना दिया है ना। रिलेशनशिप होता क्या है, पहले इसको समझना चाहिए, है ना। व्हाट इज रिलेशनशिप, इस वर्ड इट्स संबंध। रिलेशनशिप का आधार है प्रेम, प्रेम का आधार है ट्रस्ट। देयर इज नो ट्रस्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो लव, लव कैनॉट एग्जिस्ट वेयर देयर इज नो ट्रस्ट। खाली पुलाव पकाते हैं लोग, और लोग एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं ऑन द नेम ऑफ लव। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के प्रति, वहाँ कैसे लव होगा, इज इट पॉसिबल। लव इज ऑलवेज फाउंडेड ऑन ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट, ऐसे आजकल इसलिए लोग रिलेशनशिप मैरिज नहीं करना चाहते, दे आर अवॉइडिंग मैरिज बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट। कि शादी होने के बाद पता नहीं कैसा लड़का निकलेगा, कैसी लड़की निकलेगी। आई आई काउंसिल मेनी यूथ, दे डोंट वांट टू मैरी, और स्पेशली जब से ये केसेज आ रहे हैं कि ड्रम में डाल के, और इतनी संख्या में आ रहे हैं, जब द वे इट इज हैपनिंग, एंड सिमिलरली बॉयज आल्सो वी सी, नॉट ओनली गर्ल्स, नाउ दे डोंट वांट टू मैरी। कैसे ट्रस्ट करें, है ना। वो 7 फेरे लेता है, 7 वचन है, और उसके बाद एक वचन भी पालन नहीं करता। वचन का कोई वैल्यू है। जब मैरिज होता है वैदिक कल्चर में तो 7 वचन देते हैं ना, किसी को याद है, आप लोग लिया था। कुछ तो लिया होगा, पंडित जी पढ़ देते हैं। इसलिए विवाह को यज्ञ कहा गया है वैदिक संस्कृति में। विवाह यज्ञ है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कमिटमेंट है। वचन मतलब क्या, कमिटमेंट। कमिटमेंट कौन दे सकता है, जिसका कैरेक्टर नहीं हो क्या कमिटमेंट देगा। इसलिए वास्तव में वो विवाह हो ही नहीं सकता। विवाह का मतलब क्या होता है उसको समझना चाहिए, है ना। उस कमिटमेंट, वचन देते हैं वहाँ पे, एक दो, एक नहीं, 7 वचन है उसमें। उसको फ्रेम करके रखना चाहिए सामने लगा के सबके रूम में, और डेली उस पर 1-2 बार मेडिटेट करने का, तब तो फैमिली लाइफ का आनंद ले पाएंगे आप। और नहीं तो फैमिली लाइफ है जस्ट, दिखावा है। ट्रस्ट नहीं आएगा, कभी ट्रस्ट नहीं आएगा,
ट्रस्ट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ट्रस्ट रिक्वायर्स कैरेक्टर। जिसका कैरेक्टर नहीं है वो क्या, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और कैरेक्टर रिक्वायर्स संयम, आत्मसंयम, है ना। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। वेरी डिफिकल्ट, कंट्रोलिंग माइंड सेंसेस जी। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत कठिन है। इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर सेलिब्रेट लाइफ कलयुग में मना है। कलयुग में सेलिब्रेट लाइफ मना है। संन्यास इज फॉरबिडन इन कलयुग, बिकॉज पीपल कैनॉट कंट्रोल देयर सेंसेस, माइंड। मुझे लगता है कुछ समय में गृहस्थ जीवन ही फॉरबिडन हो जाएगा, बिकॉज पीपल इवन गृहस्थाश्रम दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर माइंड एंड सेंसेस। गृहस्थाश्रम बनाया गया था कि यू रिमेन सेटिस्फाइड विथ वन वाइफ एंड वन हस्बैंड, and they are well trained. You have certain desires, then remain satisfied with your wife, your husband, that's all. But that is also difficult. People, हैं? एक व्यक्ति मिला था, बोले वो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोला मेरे जीवन का लक्ष्य मुसलमान बनना। बोला क्यों? बोले उसमें 4 शादी अलाउड है। I have a lot of freedom, for sense gratification. तो कैरेक्टर नहीं रहेगा, तो इसलिए कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी। इसलिए हाँ, एक लोमड़ी थी, आपने सुना होगा कहानी की, वो अंगूर पे चढ़ने का प्रयास कर रही थी। सुने? और चढ़ नहीं पाई, लेकिन तो क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं, मैं भी नहीं चढ़ूंगी, तुम लोग मत चढ़ो। तो उसी तरह से जब चढ़ नहीं पाए तो कंक्लूजन दे दो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि कमी मेरे अंदर है, तो क्या किया उसने? अंगूर के अंदर ही कमी निकाल दिया, है ना। इसी तरह से आज का जनरेशन का हाल ये है, कैरेक्टर डेवलप तो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कैरेक्टर में कितना आनंद है, कैरेक्टर लाइफ में जो आनंद है उसको तो एक्सपीरियंस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर डेवलप करना मुश्किल। तो डिक्लेयर कर दिया कि कैरेक्टर डेवलप करना गलत है। तो लाइफ का नया वैल्यू आ गया सिस्टम, डेवलप कैरेक्टर। जो कैरेक्टर लेके क्या मिलता है? कैरेक्टर अच्छा चरित्र रखने से क्या मिलता है? कुत्ते बिल्ली की तरह रिलेशन बनाओ। पहले कैरेक्टर डेवलप करके तो देखिए, तब तो समझ में आएगा क्या मिलता है। हैव दैट लाइफ, लिव दैट लाइफ, देन यू विल अंडरस्टैंड, है ना। तो लाइफ जो है वो, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए वी आर रनिंग आफ्टर एनिमलिस्टिक प्लेजर of this world. You got the point? Animalistic pleasure, which is available even for cats and dogs. We are not running after higher thing, higher bliss. Vedic scripture says human life is meant for higher pleasure, higher bliss, not third class pleasure, which is available even for dogs and hogs. So let's experience that bliss. We have potential, high potential,
but somehow we are wasting our potential in this competing with dogs. So you ask someone, oh, what is the criteria of a smartness nowadays? If you have 4 or 5 girlfriends, then you are smart. People think I am smart. I have so many girls, women. If this is the criteria of smartness, then dog is the smartest person, isn't it? He has so many sea dogs and available at his will. Will you consider him a successful dog? No. And the whole world is just running after sex, sex, sex. That's all. And so many crimes. If you see the crimes, out of all the crimes, most of the crimes, mainly almost 50% or more than 50% crimes are related to sex. So this is the problem, big problem. And sex has become a madness, and people are getting destroyed. The families are getting destroyed. The society is getting destroyed. Eh? The children are getting destroyed. But lust doesn't care. I don't care. We know the consequences, but we don't care. Everything has a cost to pay. So, Lord Ramchandra is teaching us, teaching us. What to speak of going back to spiritual world? Even in this world, if you want to live peacefully and happily, we must learn to control our mind and senses. Otherwise, you cannot experience the real love, genuine love. What is genuine love? No. And similarly, his wife, Sita Devi, next sloka he explains about Sita Devi. अब सुनना चाहते हैं सीता देवी के बारे में? अभी तो राम जी के बारे में सुना आपने, इसलिए तुलसीदास जी कहते सीताराम चरित अति पावन, सरस मधुर अरुअति मन भावन, प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती, धिया ह्रिया च भावज्ञा भरतु सीता हरन मनः। सीता देवी, उनका कैरेक्टर क्या था? उनका कैरेक्टर, उनका आचरण कैसा था? सीता देवी अत्यंत विनीत थी। फर्स्ट क्वालिटी क्या था? शी वॉज वेरी हम्बल। शी वॉज वेरी हम्बल। सेकेंड, आज्ञाकारिणी, ओबीडियंट। थर्ड, लज्जालु, मीन्स shyness. And the fourth, sati, chaste. These are the 4 qualities of Sita. और सदा, 5वां, सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। Without speaking, she can understand the mind of husband. Without speaking. इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह से मोह सकी। She has captured the mind of the Lord by her, ये नहीं बताएगी उनकी सुंदरता से, सुंदरता बताए किससे? चरित्र से और प्रेम से और
सेवा से, नॉट बाय ब्यूटी। उन्होंने भगवान के मन को पूरी तरह मोह लिया। तात्पर्य, जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी हैं। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अति सुखी बन जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाए तो पारिवारिक जीवन क्या होगा? अत्यंत सुखी हो जाएगा। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समान लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निस्संदेह जगत से नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाएगा। तो 5 गुण हैं यहाँ पर जो सीता के कैरेक्टर में था। तो हस्बैंड क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरी वाइफ सीता जैसी हो, और वाइफ क्या एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड राम जैसा हो, और होना भी चाहिए। लेकिन हस्बैंड को राम जैसा बनाना इसकी पॉसिबल है वाइफ के लिए, लेकिन ये पॉसिबल है कि अपने आप को सीता जैसा बना सके, उस पर वर्क करे। उसी तरह से हस्बैंड को वाइफ को सीता बनाने से ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने को राम जैसा सच्चरित्रवान बनाने के लिए। हैं कमिटमेंट देखिए, कमिटमेंट लेवल कितना हाई है। सीता ने कहा मुझे क्या चाहिए? सोने का हिरण चाहिए, हैं? सोने का हिरण चाहिए, हैं? तो भगवान राम ने उनकी इच्छा को पूरा करने गए। इवेंट ही वॉज ए कमिटेड, वेरी कमिटेड हस्बैंड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। तो कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन सेंस कंट्रोल, संयम। क्या? संयमित। अगर हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सामने वाला व्यक्ति कब क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। तो वहाँ पे डीप हार्ट टू हार्ट रिलेशन बिल्ड नहीं होता है। तो फिर ठीक है, वैसे भी हम कर नहीं पा रहे हैं हार्ट टू हार्ट, वैसे भी हम संयम अपनी इंद्रियों को बस में कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? तो 2 तरीका है। रामायण के लेवल पे आने का 2 तरीका है। जैसे मान रामायण यहाँ है और आप यहाँ हैं, आपका लेवल ये है रामायण के लेवल, तो रामायण के लेवल पे आने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। या तो अपने लेवल को रामायण तक ले जाइए, या रामायण के लेवल को अपने तक लाइए, है ना? दोनों से आप रामायण के लेवल पे जा सकते हैं। तो आज के समय में लोग क्या करते हैं? रामायण को अपने लेवल पे लाकर देखो हम तो रामायण के हिसाब से कर रहे हैं। तो rather than uplifting ourselves to the level, इस रामायण लिखने का पर्पस ये था कि हम अपने लेवल को अपलिफ्ट करके उस लेवल पे लेके जाएं। लेकिन लोग वो नहीं कर रहे हैं। तो राम के चरित्र में ही दोष निकाल दो, उनको अपने लेवल पे लेके आ जाओ, सीता को अपने लेवल पे लेके आ जाओ, है ना? दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो उससे हमारा जो दवाई बनाया गया था वो दवाई भी हमने डाइल्यूट कर दिया। एक दवाई बनाया गया हमारे रोग के इलाज के लिए, उस दवाई को भी हमने उसमें भी मिलावट कर दिया, है ना? नकली दवाई बिकने लगा, तो नकली रामायण बिकने लगा।
लोग रामायण में अपने थॉट डाल डाल के उसको पॉल्यूट करके आर्टिफिशियल रामायण इतनी बिकने लगी है मार्केट में। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण तो सब लोग पढ़ते नहीं है। तो कोई नया ऑथर आ गया, वो रामायण लिखता है अपने तरीके से, उसमें सीता के कैरेक्टर को अपने तरीके से प्रस्तुत करता है, राम के कैरेक्टर को अपने तरीके से प्रस्तुत करता है। दैट वी हैव टू बी केयरफुल। इसलिए समाज जो है, देखिए कितना समस्या बढ़ रहा है ना, और उसका परिणाम भी देखिए समाज में आ रहा है धीरे धीरे। जिस तरह से लोग मानसिक मेंटल ट्रॉमा, ये सब जो चीज़ें बढ़ रही हैं। यूएस में बताते हैं कि इफ़ यू गो ऑफिस देयर इज नो गारंटी दैट यू हैव योर जॉब, एंड इफ यू कम बैक होम देयर इज नो गारंटी दैट यू हैव योर वाइफ, and in this situation you have to lead a happy life. So what kind of life is this? How one can be happy in such scenario situation? What kind of culture we have created? Right? There is no responsibility, there is no commitment. So loneliness, stress, and anxiety, fear, so many things. Life has become completely dry. So then people are drinking, smoking because of these all things. Drugs, they are taking drugs. बड़े बड़े सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस are taking drugs because so much stress. दूसरों को दिखाते हैं हम खुश हैं, प्यार में हम खुश हैं, देखो हम प्यार कर रहे हैं, और उनका प्राइवेट लाइफ में जाएगा तो ड्रग्स ले रहे हैं। नशा के बिना एक दिन जी नहीं सकते वो। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस? एंड वी आर टेकिंग देम एज आवर रोल मॉडल, आइडियल। हम इनके फैन हैं। फैन का प्राइवेट लाइफ ही तो देखो, व्हाट इज द सिचुएशन। Why is it so? And then they commit suicide also. Sometimes there is so much they cannot control. अब कब तक बाहर से ढकते रहेंगे? अंदर बीमारी चल रही है, बाहर से ढकने से नहीं होगा ना। अंदर से खोखला जीवन है, दिखावा जैसे एक सो लाइफ। कब तक चलेगा ये? तो देयरफॉर द फर्स्ट अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ही वो डीएम है, आईएएस ऑफिसर है, और वो इज कमिटिंग सुसाइड, एंड बिफोर सुसाइड मेकिंग वीडियो। बोल रहा मेरी वाइफ जो है वो मेरे से सुनती नहीं है मेरी बात, झगड़ा होता रहता है घर में, मैं परेशान। वो डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है, अपना लाइफ नहीं समझ पा रहा है कि नहीं? People are frustrated, although they have post, position, money, facility, but they're frustrated, but they don't want to admit, and they don't want to seek help, and they don't want to accept that I need to revisit my way of thinking, my way of living, and let me make some changes, bring some positive changes in my life. If we bring spirituality, हम दूर चलते जा रहे हैं। अगर हम भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हमारा लाइफ सुखी होगा, नहीं पालन करेंगे तो दुखी होगा। लॉ इज लॉ है। खाने के लिए मुंह बनाया गया है, नाक से भी खा सकते हैं, खा सकते हैं ना। जब बीमारी हो जाती है या गले का ऑपरेशन हो जाता है, डॉक्टर उस समय नाक से खाना डालता है कि नहीं? बट दैट इज नॉट नेचुरल।
Yes or no? That's not natural, it's unnatural. But foolish people, they take pleasure in unnatural things. Perversion. They have so many perverted desires. That is the symptom of Kali Yuga. They don't want to lead a straight life, pure life. They're going here and they're searching. इधर सुख नहीं मिला, जीभ से सुख नहीं मिल रहा है, नाक से डाल के देखते हैं, इधर सुख मिलेगा, इधर एक्स्ट्रा प्लेजर मिलेगा. And that's what is happening all around the world. They're exploiting the body to get pleasure. They don't understand that they're not this body. They're the soul. How much pleasure you get from body? So these principles are explained in Bhagavad Gita. जब उसको फॉलो करते हैं, then gradually we come to human society. Otherwise we are animalistic society we are leading. उसके लिए एडमिट, क्योंकि जब व्यक्ति जो बहुत हाई पोस्ट पे होता है तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ईगो. ईगो जो है उसको सबमिट नहीं करने देता है गुरु के सामने. लोग मैं झुकूंगा. सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, झुकेंगे नहीं. आई विल नॉट एडमिट, है ना, आई विल नॉट ट्राई टू इम्प्रूव. तो उसके कारण व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर बहस करता है, बहस करता है. आई एम ए साइंटिस्ट, आई डोंट एक्सेप्ट गॉड. I don't accept God. I can solve all my life problem by science. Why do I need God? How can you solve your all problem by science? अभी अर्थक्वेक आया है, साइंटिस्ट सॉल्व कर पाए? अर्थक्वेक को रोक पाए साइंटिस्ट? बाद में काउंटिंग करके बताते हैं इतने में लोग मरे, ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं 7.3 स्केल पे था. But why can you stop it? Can you stop those people, help those people who died in earthquake through science? No. What will happen to their families? No. Those who have died, those who become homeless, how science is planning to help them? Have you any plan? Do you have any plan? No, sir. You don't have plan. And you don't allow them to accept other plan also. Bhagavad Gita says, gives the plan. ये संसार ये दुखालय है. ये संसार क्या है? दुखालय. दुखालय से बाहर निकलो और भगवान के धाम जाओ, उसकी तैयारी करो. तो भगवान को ही नहीं मानने देते हैं. And they're making just false promises that I'll make you happy, make you happy, make you happy. Where is the world happy? कहाँ लोग खुश हैं? बताइए. इतने लोग, इतने क्राइम्स हैं, इतने स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है लोगों का. क्यों? कारण क्या है? हम सोचते हैं हमारा ईगो जो है अगर रहेगा, we are not trained to give respect to each other. Although we are very much educated, but culture of respect is missing. वाइफ सोचती है मैं झुक जाऊंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी, और हस्बैंड सोचता है कि मैं झुक जाऊंगा तो छोटा हो जाऊंगा. मैं क्यों झुका? मैं हस्बैंड तो, मेरे को तो अधिकार है डोमिनेट करने का. एंड वाइफ थिंक्स दैट तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे कम हूँ? आई एम नॉट लेस देन यू. सो हाउ फैमिली विल
How family will go? If nobody is ready to become humble, how family will go? How long it will go? तो चल रहा है किस तरह से, निभा रहे हैं, तो निभा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन झगड़े हो रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं. There is so much conflict, and the children are watching. Their consciousness is getting affected. जब माता पिता जब लड़ते हैं तो सब हैं. आई हैव सीन मैनी चिल्ड्रंस. बहुत सारे यूथ से मैं मिलता हूँ. दे कम एंड प्राइवेटली दे शेयर देयर हार्ट एंड दे टेल shocking things they are telling about their parents. Shocking. And they are into trauma. इतने स्ट्रेस बोल. They are saying that they cannot sleep in the night. Not because of them, but because of their parents' character, parents' behavior. So that we have to understand. We are leading a family, we are leading a future. They are our future, children are our future. What kind of culture we are giving them? इसलिए भगवान राम के चरित्र से आप देखिए, भगवान राम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया. महाराज दशरथ ने वचन दिया था कैकेयी को. देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ युद्ध करने गए तो रथ को हाँक रही थी. रथ का चैरियट को चलाने वाली कैकेयी थी in the battlefield. So कैकेयी was driving the chariot in the battlefield, and महाराज दशरथ was fighting. तो जो पहिया था, चक्का था उसका, वो निकल गया वो. So she used her finger to ensure that the chariot doesn't fall apart. बाद में जब युद्ध जीत गए तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांगो. कैकेयी ने कहा कि मैं अभी तो नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तो मांगूंगी. तो वचन दिया उन्होंने. बाद में जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, होने की तैयारी हो रही थी, तो सब खुश थे. सब खुश थे ना. कैकेयी भी बहुत खुश थी. कौशल्या से ज्यादा खुश कैकेयी थी. कब तक? जब तक मंथरा नहीं आएगी. तो हमारे लाइफ में भी मंथरा होती है. हमारे लाइफ में सब हैप्पी चलते रहते, कोई मंथरा आएगी हैं. और आपका हृदय अच्छा भी है तो क्या करेगी, आपके अंदर डाउट क्रिएट कर देगी. मंथरा आएगी या आएगा भी हो सकता है, दोनों. यू अंडरस्टैंड पावर ऑफ मंथरा. अब लोग मंथरा तो रामायण में थी, अभी कहां से आएगी. मंथरा एक कैरेक्टर पर्सनालिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज ए मेंटालिटी. क्या? मंथरा इज ए मेंटालिटी. And if someone has that mentality, he and she is also mantra. So you want to keep your family life intact, then you have to be careful from mantra. दो चीज, mantra and mantra. You have to have mantra in your life and you have to avoid mantra in your life. Mantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. एंड मंथरा को आपको अवॉइड करना पड़ेगा. आप यहाँ आ रहे, कोई मंथरा आएगी. कहाँ गए थे आप लोग? क्या जरूरत है हरे कृष्ण का? ये सब फालतू की चीजें हैं, माइथोलॉजी है ये सब. इट्स इलॉजिकल. इस्कॉन वहां विदेश में पैसे जाता है. इसी they cannot do something good, but they can harm. If you are trying to go in right direction, then people will come and put something in your ear.
doubt, they'll create doubt. So we take so many hours to create faith, and then mantra will take 1 second, 1 minute, they'll say something. Oh, like that. So each character, Ramayana, you can learn. तो भगवान राम कैकेयी को उसने कहा, और कैकेयी को क्या कहा मंथरा ने, देखो मेरे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। क्या बोला उसने, मेरा अपना क्या स्वार्थ है, तुम रानी बनोगी तो मैं थोड़ी रानी, रानी तो तुम बनोगी, मैं तो दासी रहूंगी। इस तरह से उसने कन्विंस किया, है ना। एंड कैकेयी ने, देखो कैकेयी के अंदर एक बार डाउट चला गया, देखिए उसका हार्ट जो है वो क्या हो गया, पत्थर जैसा हो गया, कैकेयी का हार्ट। और केवल हार्ट ही पत्थर का नहीं हुआ, उसकी जुबान जो है वो तलवार से भी तेज हो गई। आप रामायण पढ़िए, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उसने महाराज दशरथ को बोले। मतलब पति के सामने जो ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी कैकेयी, जब उसके हृदय में चला गया तो उसने इतने तीखे तीखे जुबान चलाए, महाराज दशरथ तो ऐसे ही बेहोश हो गए, है ना। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू handle those kind of words, especially when it comes from the mouth of someone you feel that they are your own people. When they say something, it's very painful. Therefore, we have to be very careful when we speak. महाराज दशरथ आए, उसने कहा कि आप बहुत अच्छे, खुशी का माहौल चल रहा है, आप भी बहुत खुश दिख रहे हैं, तो मुझे, आपको याद है मैंने 2 वरदान मांगे थे, आपने बोले थे 2 वरदान देने के लिए। तो कोप भवन में जाकर बैठी हुई थी। कोप भवन, पहले के राजा लोग कोप भवन रखते थे। कोप भवन जानते हैं ना, आप लोग भी रख लो अपने घर में। कोप भवन का मतलब होता है कि जब रानी जब नाराज होगी तो उस कमरे में जाके बैठेगी, तो जब राजा आएगा तो वहां बैठी है, मतलब सिग्नल कम्युनिकेट हो जाएगा कि सी इज एंग्री, अपसेट। आप उसी हिसाब से मूड बना के जाओ अंदर कि आपकी आज पिटाई होने वाली है, क्लास लगने वाली है। महाराज दशरथ आए तो, और उसका एक रूप भी होता है, भेष बना के एकदम ऐसे, कोप का भेष होता है अलग, उस भेष में ऐसे सारे गहने निकाल के एकदम बिल्कुल बाल फैला के एकदम गुस्से में, है ना, ऐसे। तो महाराज दशरथ जब वहां गए तो उसने कहा कि आपने बोला था वरदान देने के लिए, 2 वरदान, हाँ, एक वरदान दीजिए भारत का राज्याभिषेक, बोले दूसरा दीजिए राम को वनवास 14 वर्ष का। राजा दशरथ वैसे तो बहुत शौक लगा उनको, है ना, ऐसा कैसे हो गया अचानक से, इसका क्या हो गया अचानक से, कभी सोचा भी नहीं था सपने में कैसे करेगी, नहीं, लेकिन अचानक हुआ तो समझ नहीं पाए, उनको क्या पता कि मंथरा का कमाल है ना। तो मंथरा एक दासी मात्र है, लेकिन दासी देखो कैसे दिमाग खराब कर सकती है। ये नहीं कि कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति चाहिए आपका दिमाग खराब करने के लिए, ये नहीं बन। तो उन्होंने फिर बोला कि पहला वरदान तो ठीक है, भरत का राज्याभिषेक कर देंगे, चलो। पहले तो उन्होंने बोले तुम मजाक कर रही हो, उनको लगा कि मजाक कर रही है ऐसे, है ना, सीरियस नहीं है, नहीं पत्नी मजाक करती है पति से, है ना, तुमको लगा मजाक कर रही है ऐसे। तो बोले मैं समझ गया हूँ तुम मेरे को मजाक कर रही हो। बोले मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे घुमाइए मत, सीधे आप बताइए देंगे कि नहीं देंगे, स्पष्ट बोलिए, नहीं तो जाइए यहाँ से, और कल सुबह मैं पूरे अयोध्या में बताऊंगी कि आप सूर्यवंश के राजा हैं, सूर्यवंश की कुल परंपरा को आपने धूमिल कर दिया, आपने एक वचन दिया जो आप पूरा नहीं कर रहे हैं,
रघुकुल की रीति को आप नष्ट कर रहे हैं, कलंक हैं आप रघुकुल के। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ तो बेहोश हो गए सुन के कि राम को वन में भेजना है। बोले भरत का राज्याभिषेक कर, राम दूसरा मत मांगो, राम से तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, राम इतना अच्छा है, उसका कैरेक्टर इतना बढ़िया है, तुमको क्या दुश्मनी है उससे, वो तो कौशल्य से ज्यादा तुमको प्रेम करता है, माँ बोलता है ना। उस बात से उनको बहुत, और उनकी मृत्यु हो गई महाराज दशरथ की, सोचो। लेकिन कैकेयी का हृदय नहीं पिघला, उसको फीलिंग ही नहीं हो रहा है कुछ भी। मतलब जस्ट थिंक दैट महाराज दशरथ का हार्ट में इतना पेन है, बट जो कैकेयी उसकी वाइफ है, इतने साल उसके साथ रही है, लेकिन उसके हार्ट में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, एम्पैथी इज जीरो। कैसे हो सकता है, इंसान जो है साथ में रह रहा है, उसका हार्ट ऐसा कैसे हो सकता है? देयर इज नो फीलिंग। सामने वाले व्यक्ति इतना तड़प रहा है, उसको कोई मतलब, उसको याद आ रहा है भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं रानी बनूंगी, और कौशल्या अगर बन गई तो मेरे को ये बनना पड़ेगा। वो क्या होगा वो बाद में होगा, अभी तो मर रहे हैं पति, अभी तो देखो उसको। इस तरह से हार्ट जो है ना इतना हार्ड हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। कैसे भी हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। फिर राम को वनवास गए, भगवान राम का कैरेक्टर देखो कि एक दिन पहले उनको बोला गया कि आपका राज्याभिषेक होगा, और अगले दिन उनको पता चला कि अब आपको राज्याभिषेक नहीं होगा और वन में जाना है 14 साल के लिए। अब लेकिन दोनों सिचुएशन में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी मुस्कुरा रहे थे, जब पता चला वन में जाना है, बोला इतनी सी बात, पिताजी इतनी सी बात के लिए आप इतना दुखी हो रहे हैं, है ना। इसी बोले तो अच्छा मौका है हमारे लिए कि मैं जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, साधु संतों के साथ संग करूंगा, उनसे कुछ सीखूंगा, उनके साथ रहूंगा। मेरी भी यही इच्छा थी, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा जंगल में साधु संतों के साथ रहूं। मतलब ही जो थ्रेट है उसी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ही सीइंग पॉजिटिव एवरीथिंग, नो, दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। हमारे लाइफ में रिवर्स से जाएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उसको कैसे देखना है, उसको इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है, इतना ज्यादा एजिटेट नहीं होना है। एंड ही वाज इक्वल, सेम, सम सुख दुख धीर, सुख में दुख में दोनों में समान था। इस तरह से बहुत सारी टीचिंग्स है रामायण से, हर कैरेक्टर से सीख सकते हैं हम, और अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। हरे कृष्ण। So we'll stop here, and if you have any question you can ask. So I hope, तो ईगो से हमें बचना है ना। ईगो इज द किलर ऑफ रिलेशनशिप। एंड हाउ, और रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम डोमिनेट ना करें, not to dominate. Dominate, of course you have to dominate, but dominate by service, through love, through character, not through ego. Like बताया कि सीता was dominating Lord Ram by her service attitude, by her character, by her pure devotion, not by dominating by power, by ego. You can control person by your character, like that. So that way family life should be based on service, serving to each other. You serve each other so nicely that person feels, that feeling, is there. And sometimes another thing is lacking is gratitude. If somebody has done something, we should always remember that.
But in Kali Yuga, I see people don't have gratitude. ये सारी चीजें मिसिंग है, ग्रेटिट्यूड रहता ही नहीं है। आप किसी के लिए इतना करते हो और एक दिन कुछ आपसे गलती हो गई ना, एक दिन अगर आपने कुछ गलती से, मिस्टेक से कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, वो सब खत्म। ऐसा सिचुएशन आ गया, पीपल बिकम सो हंग्री, सो अपसेट। व्हाट टू डू? इसलिए हम जब इस तरह से बैठ के गैदरिंग में डिस्कशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, रिवाइज होती रहती हैं। क्या होती हैं? रिवाइज होती रहती है। वो हमारी कॉन्शियसनेस जब फ्लोट होती रहती है, जब आप जाओगे यहाँ पे तो वो याद रहेगा। ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपके दिमाग में याद आएगा, ओ प्रभु जी ने बताया था क्लास में, थोड़ा ईगो कम करो, है ना, थोड़ा ग्रेटिट्यूड देखो, है ना। ये चीज़ें बहुत फायदे करती हैं, है ना। एक साथ एक व्यक्ति था, वो सत्संग में बैठा, है ना। सत्संग में बैठा तो उसको समझ में नहीं आया सत्संग का फायदा क्या है ना। बैठ गए, एक लेक्चर सुनते रहते हैं, इससे क्या लाभ होता है? तो वो लेक्चर में सुना, एक लाइन सुना, यद्दा बद्धित न प्रिया। एक लाइन सुना कि कोई भी काम अचानक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, टेक टाइम टू मेक डिसीजन, डोंट हरी अप इन मेकिंग डिसीजन, डोंट जंप ऑन द कंक्लूजन एंड डिसीजन। दैट इज ही लर्न। वो घर जाता है, जब, है ना, फिर उसका जब हो जाता है बहुत साल के बाद, 10-15 साल के बाद वो वापस आता है अपने घर। तो जब वापस आता है घर तो उसको देखता है कमरे में उसकी वाइफ जो है वो सो रही है किसी लड़के के साथ। उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। सोचता है ये तो बहुत गलत कर रही है, मेरे को धोखा दे रही है। तलवार निकालता है, फिर अभी दोनों को मार दूंगा। तभी उसके दिमाग में याद आता है, डोंट जंप ऑन कंक्लूजन, जो सुना था, है ना। तो वो जाके बात करता है, कौन है ये, है ना। तो वाइफ बताती है कि ये बेटा है हमारा, जो बड़ा हो गया 15 साल के बाद। So I'm just saying how we can immediately jump on conclusion without discussing, getting to know the facts and all these things, you know. I'm just saying ये सारी जो टीचिंग से हम सुनते हैं ना, hearing is very powerful. This is the first step in developing ourselves. First step, just sit and hear. It is very powerful. It can transform personalities, people, society, family, completely transform. That's why this is the first thing in the process of devotion. भक्ति में सबसे पहला चीज है श्रवणम। और आप देखो आज के समय में हर चीज सिखाया जाता है आपको बोलना सिखाया जाता है, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल आपको सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल सिखाया जाता है, लिसनिंग स्किल सिखाया जाता है। अब शुरू किया है धीरे धीरे लिसनिंग। क्या? लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट एंड स्किल यू शुड लर्न। पीपल डोंट नो, लिसन, you listen people, you sit and listen and you'll see your life will be changed. सामने वाले व्यक्ति कितना भी बदमाशी करे, जस्ट स्टॉप, डोंट स्पीक, जस्ट लिसन, आस्क हिम व्हाई ही इज डूइंग, लिसन। आप देखो जज बैठ के क्या करता है कोर्ट में, बोलते हैं हियरिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? हियरिंग चल रहा है। उसको कुछ बैठ रहा, हाँ आप बोलिए, वो बोलता है आधे घंटे, और आप बोलिए, तो फिर आप बोलिए, उसका क्या काम है? हियरिंग। Without hearing, how can you give decision, conclusion? But we don't hear. How many of us hear? We immediately jump on the, हाँ तुरंत, क्या सुनना क्या है, हाँ तो तूने क्राइम किया था, चल फांसी की सजा दे दे इसको। ऐसा नहीं होता है,
है ना. But we have tendency to immediately jump on the conclusion, become judgmental without being judged. We don't have lawyer, we don't have hear other side and immediately judge. We all have this tendency. They develop this attitude of like आप लोग बैठ के 1 घंटे से सुन रहे हैं. You don't know how much it can transform your life just by hearing. This because you are developing an attitude, developing an attitude of a habit of hearing. This is very very powerful. पहले के जमाने में सेजेस क्या करते थे? सुखदेव जी बैठे हुए and he is speaking and others are sitting and hearing. Hearing goes inside, it develops, it empowers you. There are 3 types of people. First, they learn by hearing. Hearing means others' experience. Learning from others' experience. Second, they learn by experience. And third kind of people, they don't learn even after experience. They commit same mistake. Scriptures are filled with the case studies where how people have done mistake, how people have done excellently, good case studies and bad case studies. In Ramayana you have Ram also and Ravana also. Both case studies are there in front of you. Ravana का क्या हुआ परिणाम, Ram का क्या हुआ परिणाम. Both are there. And both, if we hear about that, naturally we feel inspired to develop qualities of Ram. And we feel to avoid the quality of Ravana. So like that, that's how we develop. That's why we should hear this story. Hearing is very powerful. Listening, even in our family life, we should shut our mouth and let others speak. Intelligent people, I'm telling you. Real strength of your maturity and intelligence is that you shut your mouth and first listen. Because without understanding disease, how can you give prescriptions, medicine? Isn't it? Even judge, you want to jump on, how can you conclude? There is chance that you may misunderstand. आप कैसे समझ सकते हो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहे? जनरली वी मिसअंडरस्टैंड और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है. एंड मिसकम्युनिकेशन. इसलिए कम्युनिकेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, लेट्स हियर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर व्यू पॉइंट, व्हाट ही वांट टू से. And that's what we are learning here. If you all keep coming regularly, hearing like this, sitting patience, they are developing patience also. कब खत्म होगा क्लास? So patience. We're developing a lot of patience. Yes. Tolerance also. Like that. So learning also. So then you can see it's not like just hearing going. No, it will have your impact. It will be there in your consciousness, and the right time पे pop up हो जाएगा. You don't know when it will pop up. When you need it most, that time it will pop up. क्या बताया था उस दिन, ये बता दिया था. This is so powerful, sadhu sangha. Just because you are sitting in here, you keep regularly come and just listen. You see within another 1, 2, 3 years, you will see a lot of things in yourself. Hare Krishna. Any question you have? Can ask. Yes. सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा है फर्स्ट लर्न बाय हियरिंग, क्योंकि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो. देन यू विल नॉट कमिट सेम मिस्टेक.
सच गलती से देखे, है ना? यस, पास्ट से सीख सकते हैं। पास्ट से, अपने पास्ट से, अपने पास्ट से सीखते, वही तो हो गया लर्न बाय एक्सपीरियंस। दैट इज सेकंड, लर्न बाय आवर ओन एक्सपीरियंस, दैट इज पास्ट। बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इंटेलिजेंट, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है ना? ऐसे जैसे हो गया कि चोरी करना पाप है, नहीं मैं नहीं मानता, शास्त्र में लिखा हुआ है, आई डोंट केयर, है ना? या पहले बोला जाता था, है ना, तो शास्त्र नहीं मानता मैं तो नहीं मानेगा, आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट बिलीव। तो ज्यादा चोरी करता है, पुलिस पकड़ के लिए पिटाई करती है, हाँ आप समझ में आ रहा है, क्यों बता रहे थे, हाँ हाँ गलत किया। लेकिन कुछ समय के बाद एक एक फिर उसके बाद बंद कर देगा चोरी करना, पिटाई होने के बाद एक बार जेल में। एक होता है क्या, जाता है चोरी करता है, पिटाई होती है, फिर बाहर आता है, फिर चोरी करता है, फिर पिटाई होती है, फिर बाहर आता है, फिर चोरी करता है, फिर पिटाई होती है, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं करता। दिस इज द वर्स्ट क्लास, even not learning after experience, that is punishment for him actually. some people, उनको भगवान चाहते हैं कि ये पिटते रहें, इसलिए उनको सही आइडिया उनके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ये उनके लिए क्या है, पनिशमेंट है, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। उनको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, although they are getting beaten, but still they are thinking they are smart, and that is their punishment, so that they can get beaten perpetually and repeatedly, and they don't improve, and they keep, that is punishment for them. So we have to be very very intelligent. No, let's learn from Lord Rama, learn from Ravana, learn from Kaikeyi, learn from Surpanakha. नाक कट जाएगी, सर्वज्ञ की तो नाक कटी, हमारी नाक कटेगी, समाज में दिखाने, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वही तो हुआ ना नाक कटने का अर्थ, है कि नहीं? यू सी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट का हेड बिल गेट, ही इज रनिंग ए multi-billion-dollar company, so famous, but he cannot control his senses. 57 के एज में डाइवोर्स, जस्ट थिंक, वाइफ छोड़ के चली गई because he has an affair, and he is the owner of such, he cannot control the mind and senses. This is a situation. So we can learn from such cases, such, why it is happening, why it is happening, how we can improve. That is most intelligent person, more mature, by hearing. How? By hearing. Let's listen, you know, from the scriptures. Any other question? Yes. Thank you so much for the wonderful session. My question is, we all want to progress in life. Everybody wants to be successful. How do we decide that success which is coming to our path, that is not golden deer, that is not allurement, and that is actually a right thing for us to be on the successful path?